तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस ने हुजूरनगर असेंबली हलके पर अपना परचम लहराया। टीआरएस उम्मीदवार साइदी रेड्डी ने 43,000 से ज्यादा वोटों से ये कामयाबी हासिल की। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने इस कामयाबी को तारीख साज भी करार दिया। कल यानी 26 अक्टूबर को हुजूरनगर में वज़ीर-ए-आला का जलसा इजहार तशक्कुर भी होना है। एक रिपोर्ट। हुजूरनगर ज़िमनी इंतखाबात ने एक नई तारीख रकम की है। टीआरएस उम्मीदवार साइदी रेड्डी ने नया रिकॉर्ड कायम किया। कांग्रेस उम्मीदवार उत्तम पद्मावती पर उन्होंने 43,358 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। कांग्रेस पार्टी को दूसरा मुकाम हासिल हुआ है। हुजूरनगर ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी और तेलुगु देशम उम्मीदवार को आज़ाद उम्मीदवार से भी कम वोट हासिल हुए। आज़ाद उम्मीदवार एस सुमन तीसरे मुकाम पर हैं, जबकि बीजेपी और तेलुगु देशम को चौथा और पांचवा मुकाम हासिल हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार के रामाराव को 2,639 वोट, जबकि तेलुगु देशम उम्मीदवार को 1,827 वोट हासिल हुए हैं। टीआरएस उम्मीदवार साइदी रेड्डी ने अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने इंतखाबात के मौके पर जो वादा किया था उसको पूरा करेंगे। నన్ను గెలిపించిన హుజూర్నగర్ ప్రజలందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు। నేను మీరిచ్చిన ఈ అఖండ మెజారిటీని నా మీద పెట్టిన బాధ్యతగా నన్ను ఇంకా వర్క్ చేయడానికి కష్టపడటానికి మీరిచ్చిన ఈ మెజారిటీ ఒక ప్రాతిపదికగా భావించి ఖచ్చితంగా మీకోసం, మన పిల్లల అభివృద్ధి కోసం, మన మహిళల అభివృద్ధి కోసం, మన రైతుల కోసం, టోటల్గా హుజూర్నగర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తానని మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున తెలియజేస్తా ఉన్నా। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने हल्का असेंबली हुजूरनगर से अपनी पार्टी की कामयाबी को तारीखी करार दिया और कहा कि जिस उम्मीद के साथ अवाम ने टीआरएस को कामयाब किया है उसको पूरा किया जाएगा। విజయాన్ని అందించినటువంటి హుజూర్నగర్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఎందుకంటే వారు అద్భుతమైనటువంటి మెజార్టీ ఇచ్చినారు, చాలా సంతోషం। ఈ సందర్భంలో వచ్చినటువంటి ఈ తీర్పు డెఫినెట్లీ దీంతో రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం మారేది కానీ అధికార మార్పిడి కానీ జరిగేది లేదు, కానీ డెఫినెట్గా పనిచేస్తూ పోతున్నటువంటి ప్రభుత్వానికి ఇది ఒక టానిక్ లాగా పనిచేస్తుంది। హుజూర్నగర్ ప్రజలు ఏ ఏ ఆశలతోనైతే ఏ హోప్స్ పెట్టుకొని టీఆర్ఎస్ని గెలిపించినారో 100% నేను వెళ్ళినప్పుడే చెప్తామని అనుకున్న సభలో వాళ్ళ ఆశలు నెరవేరుస్తాం। कांग्रेस उम्मीदवार उत्तम पद्मावती ने अपनी शिकस्त के लिए ईवीएम्स को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात ने इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल करते हुए ईवीएम्स में उलटफेर कर दी है। చాలా బాధ అవుతుంది। డెమోక్రసీ నిలవాలి అని కూడా కోరుకుంటున్నాను। అది ఓట్ రూపకంలో మషిన్స్ ద్వారా ఇది మేనేజ్ చేయబడింది, అది చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది। ఎందుకంటే మా హుజూర్నగర్లో వ్యక్తిగతంగా వస్తే ఇక్కడ ఎంత అభివృద్ధి చేసినాం, ఒకటి ఇంత ప్రభుత్వం వ్యతిరేకత ఉన్నా అందరూ వచ్చి సపోర్ట్ చేసి పడ్డ ఓటు ఇది। మెషిన్లో వచ్చిన రిజల్ట్ మాత్రము కరెక్ట్ కాదు। నేను ఎక్కడనో ఇండియాలో డెమోక్రసీ ఇంకా బతకాలని కోరుకుంటున్నాను। ఇదొక మంచి అవకాశం ఉండిందే, అందుకే చాలా బాధ। टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी पर टीआरएस भवन में जश्न मनाया गया। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर भी टीआरएस लीडरों ने हुजूरनगर के नताइज पर खुशी का इजहार करते हुए आतिशबाजी की और एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम करते हुए जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं तेलंगाना के सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शबीर ने महाराष्ट्र में दोबारा बीजेपी और शिवसेना इत्तेहाद की कामयाबी के लिए अवैसी को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने मुसलमानों से मुल्क में सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए 1-2 एमएलए रखने वाली पार्टियों को वोट न देने की अपील की। అలాంటి వాళ్ళు అవేసి బ్రదర్స్ అలాంటి వాళ్ళ పార్టీతోని ఇలా బీజేపీ శివసేన అధికారంలో వచ్చిందంటే మీరు కారణం కాదా? మా ముస్లిం సోదరులకు కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను, మేధావులతో అపీల్ చేస్తున్నాను, మా ఆలోచన చేయండి। ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు గెలిస్తే ఏమవుతుంది? మహారాష్ట్రలో గవర్నమెంట్ వస్తుందా? గవర్నమెంట్ రాని వాళ్లకు మీరు ఓట్లు ఎందుకు వేసి మీ ఓట్లు ఖరాబ్ చేసుకుంటున్నారు? అధికారంలో వచ్చేది
ఇటు హిందుత్వ పార్టీ, ఇక్కడ సెక్యులర్ పార్టీ. ఈ ఇద్దట్లో ఎవరో పుట్టినది ఈ రాష్ట్రంలో కానీ ఇక్కడ ఎప్పుడు అంతమంది కాంటెస్ట్ చేయరు. 9 10 చేస్తారు, అక్కడ మాత్రం 44 చేసినారు. బికాస్ ఓట్ కట్వా అంటే ఓవైసీ బ్రదర్స్ హమారే లియే భగవాన్ కా వరదాన్ అంటే దేవుడి తరఫు నుంచి మాకు దిగిండు, వీళ్ళు మాకు గెలిపించేందుకు. ముస్లిం సోదరులకు కూడా అప్పీల్ చేస్తున్నాను, 1-2 ఎమ్మెల్యేలకు అలాంటి పార్టీ వాళ్లకు మీరు ఓట్లు వేసేస్తే సెక్యులరిజంకు నష్టపోతాము. మీరే ఇవాళ హిందుత్వ పార్టీని మీరు ముందుకు తీసుకుపోయేందుకు. तेलंगाना आरटीसी जेईसी कन्वीनर पर कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। कुकटपल्ली बस डिपो से वाबस्ता आरटीसी ड्राइवर के राजू ने हड़ताल के बाद मुलाजमीन की खुदकुशियों के लिए अश्वत्थामा रेड्डी पर इल्जाम लगाया। उन्होंने अश्वत्थामा रेड्डी को मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार करार दिया और कहा कि अश्वत्थामा रेड्डी मुलाजमीन के लिए जद्दोजहद करें, लेकिन काम बंद करके मुलाजमीन को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले पर वो कौमी लीडरों और सदर जमहूरिया से भी नुमाइंदगी करने वाले हैं। उधर कुकटपल्ली पुलिस ने कहा कि वो राजू की शिकायत का कानूनी जायजा लेकर ही आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं तेलंगाना जेएसी के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडाराम ने रियासती वज़ीर आला केसीआर की जानिब से आरटीसी यूनियन को खत्म करने के बयान की मजम्मत की और कहा कि हुकूमत यूनियन को खत्म करके मुलाजमीन के हुकूक का इस्तेहसाल करना चाहती है। कोदंडाराम ने यूनियन को बचाने और आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के लिए मुत्तहदा जद्दोजहद करने पर भी जोर दिया। సంస్థలు కార్మికులు అందరూ కూడా ఐక్యం కావాల్సిన సమయం. అసలు యూనియన్లే వద్దంటున్నటువంటి కాలంలో యూనియన్ హక్కుల కోసం అన్ని ట్రేడ్ యూనియన్లు ఐక్యం కావాల్సినటువంటి ఒక సందర్భం. మొత్తంగానే ఒక దౌర్జన్యంతో దాడికి దిగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో అన్ని రాజకీయ పక్షాలు ఒక తాటి మీదకి రావాల్సినటువంటి సందర్భాన్ని. और वहीं तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यूनियंस ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हालिया बयान पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मुलाजमीन को इश्तियाल दिला रहे हैं। वज़ीर आला का बयान उनके शायान शान नहीं है। उन्होंने हड़ताल से मुतालिक अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने हड़ताली मुलाजमीन की जानिब से 28 अक्टूबर को तमाम अजला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश करने का भी ऐलान किया। ఇక్కడ లేదు. కార్మికుల హక్కుల ప్రయోజనానికి ఆర్టీసీని ప్రజా రవాణాను కాపాడడానికి, ప్రజా రవాణాను బ్రతికించడానికి, ఆర్టీసీ ఆస్తులు కాపాడుకోవడానికి మా సమ్మె జరుగుతుంది. దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్న మరొకసారి ఈ యొక్క 4 రోజులకోసారి 3 రోజులకోసారి కార్మికుల మనోభావాలు తినకుండా ముఖ్యమంత్రి స్థాయి తగ్గకుండా మాట్లాడగలిగా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल पर वज़ीर आला केसीआर के बयान की हर तरफ से मजम्मत की जा रही है। खम्मम आरटीसी और सियासी जेईसी ने मुस्तकबिल का लाए अमल तरतीब देने के लिए एक इजलास मुनक्किद किया है। इस इजलास में कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई तेलुगु देशम, न्यू डेमोक्रेसी, जन समिति और दीगर अवामी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। जेईसी लीडरों ने बताया कि आज से 30 तारीख तक आरटीसी डिपोज के बाहर एहतजाजी प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। और वहीं वरंगल में भी वज़ीर आला केसीआर के बयान की शदीद मजम्मत की गई। हनमकुंडा में हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन ने एक इजलास मुनक्किद किया और एहतजाज में शिद्दत लाने पर जोर दिया। इस दौरान एहतजाजी मुलाजमीन ने मसाइल के हल का मुतालबा किया और वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी आरटीसी मुलाजमीन का कहना है कि वो गुज़िश्ता 20 दिनों से मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। मसाइल के हल तक उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। वहीं तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के 21 दिन हो चुके हैं। मुलाजमत चले जाने के खौफ से जहनी तौर पर परेशान एक आरटीसी ड्राइवर मोहम्मद जमील का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। नलगुंडा जिले के नारकटपल्ली में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। बताया गया है कि नारकटपल्ली बस डिपो से ताल्लुक रखने वाले ड्राइवर मोहम्मद जमील आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के बाद से बेहद परेशान थे। गुज़िश्ता महीने तनख्वाह नहीं मिली थी, इस वजह से और फिर हुकूमत की तरफ से हड़ताली मुलाजमीन को बरतरफ कर देने के ऐलान के बाद उनकी जहनी परेशानियों में लगातार इजाफा हो रहा था। 2 दिन से सीने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और इसी दरमियान उनका दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। मरकजी मुमलकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल को हल करने का वज़ीर आला से मुतालबा किया है और कहा है कि कानून में मुलाजमीन को सस्पेंड करने का इख्तियार है, बेदखल करने का किसी को इख्तियार नहीं है। కొట్టగొట్టి కార్మికులను భయపెట్టించి ఈరోజు
మేము ప్రభుత్వాన్ని పరిపాలిస్తామంటే అది న్యాయం కాదు. కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ మీద అనేక రకాల తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ రోజు కూడా కార్మికులను సస్పెండ్ చేయాలని, కార్మికులను ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించాలని ఏ చట్టం మేము చేయలేదు. ఏదో కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది కాబట్టి మేము చేస్తున్నాం అంటున్నారు. మేమేమంటున్నాం ఒకటే, కార్మికులతో చర్చించండి, కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కారం చేయండి. सेहतमंद माशरे की तामीर ही तेलंगाना हुकूमत का अहम मकसद है और ये कहना है तेलंगाना के वजीर सेहत एटला राजेंद्र का। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में आए दिन कैंसर और किडनी के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। MNJ कैंसर हॉस्पिटल की जानिब से हैदराबाद में कैंसर के खिलाफ शऊर बेदारी रैली निकाली गई। निकलस रोड से जल विहार तक इस रैली का एहतमाम किया गया। इसमें रियासती वजीर ई राजेंद्र ने शिरकत की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द रियासत में जदीद सहूलियात से लैस कैंसर हॉस्पिटल तामीर किया जाएगा। इसके लिए हुकूमत की जानिब से 60 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जिला सिंगारेड्डी के फसलवाड़ी गांव में कोल्स और लॉरी के दरमियान टक्कर हुई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, दीगर 7 जख्मी हैं। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद से ग्वालियर संबोधन के लिए जा रही थी। कार ने मुखालिफ सिम से आने वाली लॉरी को टक्कर दे दी। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। रियासत में भारी बारिश के पेश नजर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। भारी बारिश से हुए नुकसान से मुतालिक ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की गई। वाज़ेह है कि बारिश के सबब बड़े पैमाने पर फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को नुकसान की तफसीलात से CMO को वाकिफ करवाने की हिदायत दी। इस इजलास में महकमा रेवेन्यू के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, महकमा ज़राअत के सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। वहीं बालाई इलाकों और साहिली आंध्रा में हो रही भारी बारिश के सबब साहिली अजला के कई इलाके झीलों का मंजर पेश कर रहे हैं। प्रकाशम बैरेज के सतह में इजाफे के बाद विजयवाड़ा के गांधीनगर, तारकराम नगर, रामालंगेश्वर नगर, कृष्णालंका में घरों में पानी दाखिल हो गया है। प्रकाशम बैरेज की सतह आब में इजाफे के बाद जायद पानी को समुद्र में छोड़ा जा रहा है। ओहदेदारों ने प्रकाशम बैरेज के 70 गेटों को खोल दिया है। कुल जुमला 5,70,000 क्यूसिक पानी समुद्र में छोड़ा गया। फिलवक्त कृष्णा बैरेज की सतह आब 15.4 फीट तक पहुंच गई है। ओहदेदारों ने मजीद 48 घंटों तक भारी बारिश की पेशगोई भी की है। रायलसीमा इलाके की बदहाली के लिए कोई और नहीं बल्कि यहाँ के मकामी लीडर ही जिम्मेदार है और ये कहना है जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण का। उन्होंने कहा कि अवाम में बेदारी के बाद ही इलाके की तरक्की मुमकिन है। मंगलगिरी के जनसेना दफ्तर में रायलसीमा इलाके के वकला और तलबा तंजीमों के लीडरों से उन्होंने खास मुलाकात की। वकला ने इस मुलाकात में कहा कि वो रायलसीमा में हाईकोर्ट के क़याम का मुतालबा अरसे से कर रहे हैं। उन्होंने पवन कल्याण से इस सिलसिले में तायद की अपील की, जिस पर पवन कल्याण ने संजीदगी का इजहार किया। और वहीं रेत की सप्लाई से मुतालिक YCP हुकूमत के तरीक़ेकार पर पवन कल्याण ने तशवीश का इजहार किया और कहा कि रेत की नई पॉलिसी के सबब 19 लाख अफराद रोजगार से महरूम हो गए हैं। इसकी YCP हुकूमत को कीमत चुकानी पड़ेगी। నాయకులు కూడా చెప్తున్నాను, మళ్ళీ మీరు కొత్తగా బాధ్యతా రాహిత్యంతో మీరు ఎలా పడితే ఎడాపెడా తవ్వించుకోవచ్చు ఇసుకని మీరు మళ్ళీ చెప్పడం మీ పరాజయానికి మీరు పడిపోవడానికి మొదటి మెట్టు ప్రారంభం అని గుర్తుపెట్టుకోండి। वहीं रेत की नई पॉलिसी के खिलाफ रियासत भर में तेलुगु देशम पार्टी ने भी सख्त एहतजाज किया है। मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज के दौरान कशीदगी देखी गई। विजयवाड़ा में तामीरी मजदूरों के साथ एहतजाज किया गया। MLC बुद्धा वेंकैया की क़यादत में मुनक़दा एहतजाज के दौरान हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की गई। पुलिस ने एहतजाज को नाकाम किया। बुद्धा वेंकैया को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने भिवानीपुरम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। और वहीं तेलुगु देशम लीडर BAK परवेज और TDP लीडरों की जानिब से रेत के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। STBC कॉलेज ग्राउंड से ट्रैक्टर्स रैली निकाली गई। तेलुगु देशम लीडर परवेज ने हुकूमत से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन की जानिब से रियासत में रेत के मसाइल को हल करने और वर्कर्स को रोजगार फराहम करने का मुतालबा किया और कहा कि रेत की किल्लत से तामीराती सरगर्मियां ठप बढ़ गई हैं। तामीराती मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ट्रैक्टर्स रैली TDP लीडर TG भरत की क़यादत में निकाली गई। तमाम तेलुगु देशम पार्टी लीडर्स
वर्कर्स और तमाम जो भी लेबर है, ये जो रेती के वजह से बिल्डिंग लेबर है, वर्किंग लेबर है, तमाम आज शामिल हुए हैं और सी कृष्णा देवराया जो सर्किल है वहाँ पे जाके आज एक दिन का निरसना दीक्षा बैठे हैं और कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन भी दिए हैं। करनूल के उस्मानिया कॉलेज में यूएन डे तकरीब का खास इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में श्री रामलू और जिला कलेक्टर करनूल ने शिरकत की। इस मौके पर श्री रामलू ने बताया कि यूनाइटेड नेशन का अहम मकसद दुनिया भर में अमनो अमान कायम करना है, साथ ही तालीम की तामीर तरक्की के लिए भी इसका अहम रोल है। Society is going to help yourself, your family, your village, your district, your state, finally your nation, the lost, the world. So that is what we need to understand about today's United Nations Organization Day. So this message has to not just confine to this auditorium; it should be spread even outside to the whole world. और क्लाइमेट चेंज के लिए क्या है, एनवायरमेंट के लिए क्या है, फॉरेस्ट्री में क्या है, एंड द फेथ कम्युनिटी बेस्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फेथ कम्युनिटी बेस्ड नीड टू बी टेकन अप इनटू दिस वर्ल्ड, दैट हर आदमी एक ही है और हर आदमी के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन बोलना चाहिए। ओनली विद वन कैप्शन, नो कम्युनिटी लेफ्ट बिहाइंड इन नोइंग द यूनाइटेड नेशन ऑब्जेक्टिव्स। बस। आंध्र प्रदेश स्टेट उर्दू एकेडमी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की हड़ताल गुज़िश्ता 8 दिन से जारी है। उर्दू एकेडमी के मुलाजमीन गुज़िश्ता 4 महीनों से अपनी तनख्वाहों को फौरी तौर अदा करने की हुकूमत से लगातार मांग कर रहे हैं। अपने मुतालबे के हल के लिए एहतजाजियों ने अरकान असेंबली और वज़रा के मकानों पर धरना भी दिया, लेकिन हुकूमत उनकी मांगों को नहीं सुन रही। उर्दू वालों का मुतालबा है कि आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी की निगरानी नायब वज़ीर आला अमजद बाशा करें और उनके मसाइल को हल किया जाए। उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश उर्दू की फलाह और फरोग के लिए काम करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रही है। न ही कई वर्षों से किताबों के लिए जो माली ताउन दिया जाता है उर्दू के किताबों की प्रिंटिंग के लिए, वो नहीं दिया जा रहा है। न ही उर्दू के जो इदारे चलाते हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर, जो लाइब्रेरी चलाते हैं, उन एम्प्लॉयज की तनख्वाह दी जा रही है। पता नहीं क्या आलम चल रहा है। तकरीबन 4 महीनों से एक पाई की अदायगी नहीं हुई है। उर्दू वाले एक डिमांड कर रहे हैं कि कायदा के हिसाब से चेयरमैन जो है वो कम से कम सीएम के ओहदे का आदमी होना चाहिए, सीएम साहब। करनूल के मजलिस तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद अहले सुन्नत जमात के दफ्तर में पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। तंजीम के जिम्मेदार मौलाना तौसीफ ने बताया कि करनूल में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद और अहले सुन्नत जमात की जानिब से 27 अक्टूबर को इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस इजलास में बेंगलुरु के मौलाना PM मुज़म्मिल रशीदी का खुसूसी खिताब होगा। उन्होंने अवाम से इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की। तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद अहले सुन्नत वल जमाअह करनूल की जानिब से एक जलसा आम मौजूदा हालात के ज़िम्न में 27 तारीख बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा रॉयल फंक्शन हॉल करनूल के अंदर रखा गया है, जिसका उन्वान हालात हाजिरा का हल उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। इस उन्वान से जलसा रखा गया है, जिसकी सरपरस्ती शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना जुबैर अहमद खान साहब रशादी दामत बरकातुहुम फरमाएंगे और इस जलसे की सदारत हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब कासमी दामत बरकातुहुम फरमाएंगे। इस जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कर्नाटक की मशहूर मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब रशादी वाला जाही दामत बरकातुहुम तशरीफ ला रहे हैं। इसी तरह शहर की हमारी हरदिल अजीज शख्सियत जनाब मोहम्मद अब्दुल हफीज खान साहब। विजयवाड़ा में बीजेपी कारकुनों ने सख्त एहतजाज किया। उन्होंने मीडिया के एक गोशे पर दिवाली के मौके पर हिंद तबके की तौहीन करने का इल्जाम लगाया। बीजेपी लीडर ने इस मामले पर हुकूमत से कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने अवाम से दिवाली त्यौहार को जोश खरोश से मनाने की अपील की। भाजपा के सारे कुटुंब के लोग यहाँ धरना चौक में विजयवाड़ा में हम लोग बड़े स्तर से रोड पे उतरा के हम लोग ये धरना शुरू इसीलिए करना पड़ा। एक स्टोरी ये लोग रन किए थे जिसमें हिंदुओं को एक
डोंकी के रूप में दिखा के और जो भी क्रैकर्स बर्न करेंगे उन लोग को भी एक गलत सूचना देने के लिए ये सब लोग देख रहे हैं। और किसी तरह से भी हमारे हिंदुओं को और हजारों साल से आते हुए एक फेस्टिवल को भी आप लोग इंसल्ट करना आपके लिए उचित नहीं है। और हम लोग आपको चेतावनी आज देते हैं कि इस तरीके से स्टोरी आगे के लिए कभी भी आप रन करने के पहले हजार बार सोचिए कि हिंदू संस्था और भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से आप ठेस पहुंचाने के लिए आपको कोई हक नहीं है। और आगे के लिए आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप लोग गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपके गर्दन पकड़ के हम लोग इस तरीके के ना करने के लिए हम लोग को मजबूर करना पड़ेगा। हम लोग विजयवाड़ा के एलूर में एक बेकाबू कार ने सनसनी मचा दी। ताड़ेपल्ली गोड़ेम की कार हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी कि सड़क के बीच में वाक़े इलेक्ट्रिक पोल से जा टकराई। इसके बाद तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे खड़ी दीगर 3 कारों को भी टक्कर मारी। 3 कारें, कई 2 व्हीलर से गाड़ियों को इससे नुकसान पहुंचा। हादसे का शिकार कार में एयर बैलून होने के सबब कार में सवार 2 अफराद मामूली जख्मी हैं। माचावरम पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। खबरों में इतना ही। आदाब।